Okay, hello everyone. I am Astha, and for a very long time, I've wanted to start a YouTube channel, right? And usually, we've seen जब भी कोई YouTube channel start करता है, they say it like this: Hello everyone, I am so and so. So you can look at me, कितने tries मैंने किए थे in the past 1 year of attempting to try my YouTube channel. Anyways, I hope you enjoy the video, and I hope that at least it brings a smile to your face. Okay, bye. Okay, hello everyone. Astha. Hello. Okay. ओके सो अभी आपने जो 2-3 वीडियोज़ का कॉम्पाइलेशन देखा, दैट वाज़ माय घटिया एडिटिंग, माय नॉट सो गुड एडिटिंग, बट इट्स ओनली माय फर्स्ट वीडियो, सो आई होप धीरे-धीरे आई लर्न। नथिंग, इस वीडियो में आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि आई एम सेइंग हेलो एवरीवन एंड आई वाज़ सेइंग कि आई वेंट टू मेस, आई गॉट माय चाय एंड फाइनली द फर्स्ट वीडियो दैट आई वांटेड टू मेक, आई वाज़ एक्सप्लेनिंग कि कैसे अभी मैं चाय लेके, क्योंकि मेरे रूममेट्स अभी है नहीं, तो आराम से बेड में बैठ के आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल. And since I'm also an MBBS student, beach mein I've also included some medical knowledge. So I hope you like this video, as in it brings a smile to your face. Okay, so hello everyone. Uh, I am Astha. I'm currently a second year MBBS student at Bangalore. And well, अभी मेरे रूममेट्स रूम में नहीं है एंड बस मैं चाय पी रही हूँ एंड आई wanted to just share a few things. So, I've been wanting to start a YouTube channel for like a very long time. So, currently I'm 19. Now I know it sounds old. It depends. May sound old to some, young to few. So, the thing is, maybe when I was 17, 18, I wanted to start a YouTube channel. But उस time पे we were busy studying and so I had it in me that like I was thinking कि in future I will definitely make a YouTube channel. And so when I turned 19, right, before turning 19 मुझे वो record करना था. I wanted to record my 19th birthday. um, well, वो नहीं हो पाया. I mean record in the sense, of course, दोस्तों ने वीडियो वो सब बनाया, but like as in having a YouTube channel. So it's 2025, it's January, and I wanted to make a channel. So plus मेरे को I don't want any regrets in life. जैसे even while preparing for NEET, उस टाइम पे भी there were things that I wanted to do academically. तो uh, I mean I did that, and then after NEET also, like, meeting some friends, and then certain things, मतलब I could just have been there at home, घर पे बैठ के ये सब, बट नहीं, मुझे मिलना था, तो मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड आई डिड दैट. सो आई जस्ट डोंट वांट एनी रिग्रेट कि बाद में आई शुड बी लाइक कि भाई उस टाइम पे आई शुड हैव मेड अ यूट्यूब चैनल और समथिंग. सो सिंस आई डोंट वांट दैट, सो आई एम मेकिंग दिस चैनल now. I don't know if anyone is watching or not, but why did I want to make this channel? So one of the main reasons would be क्योंकि अभी I'm 19 and I will soon turn 20, right? Now I am still a teenager technically, so before turning 20, like when you turn 20, it's like a big number, मतलब वो अलग range है, like it's as if you're like entering a new phase of your life, because like 20 is something. There are many people in my class who are already 20 plus. uh, so even like when I asked them also, like, oh, finally you're 20 something, 21 or whatever, so they were like, yeah, it's matlab thoda hard to believe. So I, before turning 20, I want to like sort of document myself and see, maybe down the line जब I'm 50 60 or whatever, जितने भी years की मैं हूँ, at that time, I'll be like, okay, so this is how I was when I was 19, and ऐसे तो I can see myself कि मैं how I was, and how was my, what was my thinking like. And although it's good to be mature, and I know in certain situations you have to be mature, and all that's fine, but right now we're young, and we should also have like, we should stay young, be foolish in the sense कि apart from the academic thing that we do, we should also involve in extracurriculars and go out and stuff. And मैं अभी बाहर नहीं जा रही क्योंकि हमारे हॉस्टल की रेजिडेंट वार्डन मैम, शी हैज़ टेकन हॉलीडे, तो अभी हम लोग नहीं मतलब जिन्होंने ऑलरेडी परमिशन ले ली है वो जाएंगे. हाँ, परमिशन लेना पड़ता है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है. आई विल नॉट, मैं अभी कुछ नाम वाम नहीं ले सकती कॉलेज का एंड ऑल, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल. तो ओके, चाय पीना ही भूल गई. सो एक तो आई वांट टू डॉक्यूमेंट इट, एंड वाह,
I wanted to say some point. Wait. क्या भाई, इतनी बेकार memory, and then I wanted to record. Fine, that was my first point. The hell. हाँ, उसके अलावा so right now my exams are coming up in like another 2 weeks. So I do not wanna उसके साथ मैं वो नहीं करूँगी compromise. So keeping that aside, अभी आई डोंट नो इफ आई बी, तो ऐसे सिंस मेरे को बहुत टाइम से आई वांटेड टू मेक यूट्यूब चैनल. सो माई गैलरी इज फुल ऑफ वीडियोज. But the thing is, I've made videos randomly. I've made videos with friends. I've made videos of me vlogging. जैसे यहाँ से कॉलेज तक जा रही हूँ, so I found some friends and then I was recording us, मतलब परमिशन लेके, of course. मतलब कुछ कुछ की से परमिशन नहीं ली, so उनका नहीं डालूंगी, जो भी है. So मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं. बट द थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग श्योर कि मेरे आई डोंट हैव एनी रिग्रेट इन लाइफ, एक और रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस चैनल वुड बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रीज़न इज इटसेल्फ इज़ अ बिग रीज़न कि एटलीस्ट अगर मैं अपना पहला वीडियो आज डाल दूंगी, सो दैट बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि फिर मेरे को बाद में ऐसा नहीं रहेगा नहीं डाल देना चाहिए था, आई शुड हैव डन इट, बिकॉज आई वुड हैव ऑलरेडी डन इट. Second reason would be कि in this like channel, since I am staying away from home, right? अभी I am from अभी मैं नॉर्थ से हूँ और मैं यहाँ पे बैंगलोर में रह रही हूँ. So usually इंटरनेट पे भी सी दैट पीपल आर, अरे भाई कॉल कॉल आ रहा है, काट दीजिए. हाँ, usually we see internet पे people are, they're like कि relate, मतलब to make sure that they can relate with other people who are watching their video, they will say some things which are नॉट सो ऑथेंटिक. बट मेरे को यहाँ पे कुछ वो बोलना नहीं है, मैं सब रियल बोलूँगी. सो आई एम बेसिकली एन एक्सट्रोवर्ट. तो मैं मतलब वेन एवर आई गो टू अ न्यू प्लेस आई कैन मेक फ्रेंड्स ईजिली, राइट. मेरे को मतलब टू टॉक टू समवन और एनीथिंग, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है. आई एम आउट गोइंग एंड आई लाइक दैट. एंड बट द थिंग इज दैट इवन आफ्टर अगर वो कैरेक्टरिस्टिक है आप में, उसके बाद भी जब आप मतलब घर से दूर रहते हो, सो फर्स्ट ईयर वॉज वेरी वेरी फर्स्ट ईयर वॉज फुल ऑफ इमोशंस, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग था. बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में रह रही थी एंड एवरीथिंग, मतलब ठीक है, पहली बार शिफ्ट हुए, पेरेंट्स वुड कम टू ड्रॉप यू, ठीक है, पेरेंट्स ने आपको ड्रॉप किया, देन यू विल गो, एंड देन सुबह खुद उठना. मेरे को आज भी लाइक टुडे, टिल टुडे, माई मदर विल कॉल मी इन द मॉर्निंग एंड दैट इज़ हाउ आई गेट अप. ठीक है, मैं मतलब 10 अलार्म्स भी लगा लूँ, इवन इफ आई पुट लाइक 10 अलार्म्स, भाड़ में जाए वो, मेरे कान रेजिस्टेंट बन चुके हैं टू द अलार्म्स. बट एज सुन एज माई मॉम कॉल्स मी, ठीक है, एक बार मैं तुरंत नहीं, बट दूसरी बार जब कॉल आता है, मैं उठ के सीधा ब्रश करने जाती हूँ. सो वो तो है ही. बट लाइक फर्स्ट ईयर वॉज ओवरवेलमिंग बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली जो लोग पहली बार अभी हॉस्टल में, नॉट एग्जैक्टली एसेंशली नीट में, सिर्फ MBBS की बात नहीं कर रही, कुछ भी इंजीनियरिंग या कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है. इनफैक्ट इवन इफ यू आर, जैसे माई कज़न ऑल्सो स्टेज हियर, so oh, she's great. So so she's an engineer, she's working in a company, it's amazing. तो कोई भी अगर रह रहा है, मतलब even though you have completed college and you're working or something, तो लोगों को लगता है कि ओके, आपने इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स आपने कॉलेज में यू स्पेंड, तो अब आपको आदत हो गई होगी. बट नहीं, मतलब सबको याद आती है भाई, एवरी वन इज़ अ चाइल्ड एट हार्ट. दिल में तो सबको मतलब फैमिली चाहिए, राइट. I can't exactly say after college because I am in second year, but yeah, that is what I can sort of think कि ऐसा होता होगा. अब फर्स्ट ईयर में इतना ओवरवेलमिंग क्यों था, बिकॉज एक तो क्योंकि सबसे पहले सुबह सुबह उठने से ही स्टार्ट करो, सो खुद उठना है, सब कुछ खुद करना है, पैक करना है, कपड़े खुद धोने हैं, दैट वाज अनदर थिंग. यहाँ हमारे हॉस्टल में एक तो पूरे UG के लोग हैं, फिर PG, जो हमारे जो भी सीनियर्स PG कर रहे हैं, जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी जिसमें भी उनका PG है, उनके लिए जो बिल्डिंग है, फिर इंटर्न्स, सबको मिला के, आई एम नॉट किडिंग, ग्राउंड फ्लोर में एक मशीन थी स्टार्टिंग में, एंड थर्ड फ्लोर में एक मशीन थी. ठीक है, सब कुछ मिला के. तो मतलब सैटरडे संडे तो देयर यूज्ड टू बी अ लॉन्ग लाइन फॉर द वॉशिंग मशीन. ओ हाँ, ये सिंस आई हैड द क्रेज ऑफ मेकिंग यूट्यूब चैनल, मैंने वॉशिंग मशीन में भी अब रिकॉर्डेड माई व्लॉग्स शोइंग सी गाइस द वेदर इज ऐसे करके, ठीक है. सो एनीवेज, सो ऑल दैट ऑल्सो आई हैव डन नाउ. अच्छा, वो मैं पैर ऐसे रख रही थी, बट आई केप्ट इट डाउन बिकॉज मतलब
not unprofessional, but अभी नहीं, I'm not that comfortable right now since it's only my first video. तो वहाँ वॉशिंग मशीन में क्या होता है ना, मैं ठीक है, आई हैव बीन एन एक्सट्रोवर्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एज अ पर्सन मैं आई कैन नॉट फाइट, लाइक जैसे अगर आई हैव ऑलवेज बिन इन्वॉल्व इन एकेडमिक्स अ लॉट एज वेल एज स्पोर्ट्स, ठीक है, मैं सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, सो आई हैव प्रीटी मच बिन इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो स्पोर्ट्स में भी व्हेनेवर वी यूज्ड टू प्ले और समथिंग, एंड अगर गलती से कुछ लड़ाई होती थी तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, बट इन केस अगर कभी लड़ाई होती है एंड यू नो योर राइट, एंड फिर आप शाउट करते हो, सो सिंस आई एम नॉट यूज टू शाउटिंग, मैं शाउट नहीं करती हूँ, सो you feel, you know, after that, after the thing happens, you feel bad as I normally. So similarly in machine what used to happen is कि बहुत लंबी लाइन होती थी, तो 1-2 घंटे तो बैठना, मतलब या तो आप गए रूम में एंड बहुत सारी बकेट्स है, सो आइदर यू सिट देयर फॉर 1 or 2 hours, ठीक है, 1-2 घंटे तक आपने बैठा, आप क्या कर, आप वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हो, जिस लाइक थोड़ा सा अनरियलिस्टिक, देखिए जैसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, बट द थिंग इज दैट दैट होल एरिया इज़ नॉट ऑफ दैट, मतलब छोड़ो। तो आपने वहाँ पे वेट किया, एंड देन सिंस यू हैव वेटेड, सो इट्स फेयर कि आप अपनी बकेट नेक्स्ट डालोगे, बट द थिंग इज बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने वेट किया, कोई और आ गया एंड दे स्टार्ट फाइटिंग, सो सिंस आई डेंट वांट टू फाइट, तो मैंने मतलब अगर बहुत वेट नहीं किया तो मैं उनको बोल देती थी कि हाँ ठीक है, यू पुट योर क्लॉथ्स बिकॉज सिंस आई डोंट वांट टू फाइट, एंड दैट्स डन। बट एक बार मतलब वन सीनियर केम एंड मैंने 1 घंटा वेट किया, एंड शी केम and her clothes were done, and she was like, after this my friend will put, and I tried telling कि भाई मैंने मतलब I was waiting here since 1 hour, but first of all she was an intern, so मेरे को I don't want to say anything because हम लोग फिर भी अभी MBBS कर रहे हैं, they are interns, उनकी मैंने ऐसा सोचा कि of course interns में उनकी नाइट ड्यूटी लगती है and they are stressed and what not, so मेरे को उनसे लड़ना नहीं था, but the way she spoke was very cruel, शी ऑलमोस्ट मतलब चढ़ी गई थी मुझ पे, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं इन सब से दूर रहती हूँ, मैं आई एम फ्रेंडली टू एवरी वन, एंड आई डू लाइक टू बिलीव दैट आई एम अ गुड फ्रेंड, एंड बिकॉज यू नो फ्रेंड्स आर द वंस जो आपके बुरे टाइम पे आपके साथ रहते हैं। तो थोड़ा टॉपिक शिफ्ट हो गया, सो थोड़ा आई हैव टू थिंक, क्योंकि मैं एक बार एक कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करती हूँ, एक टॉपिक दूसरा टॉपिक और फिर पूरा यू टर्न लेके आई डाइवर्ज द थिंग, नॉट नॉट पर्पजली ऑफ कोर्स। चलो क्या टॉपिक पे थे हम, मशीन, तो एक तो ये हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ खाना, मतलब घर पे इवन इफ़ यू गेट लाइक अ सिंपल, मे बी द, नो आई वोंट से वर्स बिकॉज खाने को वो नहीं बोलते, बट लाइक योर नॉट सो फेवरेट खाना एक्सक्लूडिंग करेला, करेला तो कहीं पे भी दो मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है, आई नो बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता, उस केस में मैं इसीलिए खाती हूँ, इसीलिए मैं लेती ही नहीं हूँ ज़्यादा ताकि वेस्ट ना हो, बट इन जनरल जैसे for example, anything that you don't like in South, what do people don't like? I could have asked my roommates, वो है नहीं, but usually जैसे मेरे लिए घर पे कभी लौकी is I think bottle gourd, right? जो भी है तो वो बनती थी, तो आई वाज लाइक ये क्या, यू नो, आई यूज्ड टू बी लाइक ये क्या है, इससे अच्छा कुछ और है ना, बट आई एम नॉट इवन किडिंग, आज की डेट में अगर मुझे वो रोटी गरम गरम घी के साथ एंड वो सब्ज़ी मिलेगी, आई विल लीव एवरीथिंग, मैं सब छोड़ के वो खा लूँगी, बिकॉज इफ़ यू, ठीक है, हॉस्टल का खाना बुरा होता है, वी नो दैट, आई मीन वो माइंडसेट बना के ही गए थे कि हॉस्टल का खाना बुरा होता है, द थिंग इज एवरीथिंग, लाइक इवन देयर रोटी इज़ लाइक, उस रोटी का टेक्सचर ही अलग है, एंड हर रोज़ रेपिटेटिव खाना खा के तो मैं थक गई थी, और बहुत सारी नई नई डिशेस भी डिस्कवर किए। नाउ द थिंग इज़ कि अगर वो जैसे बिसे भात, तो ठीक है वो अच्छा ही बनाते हैं, बट बहुत सारी न्यू न्यू, जैसे जैसे वो रागी के कुछ बॉल होते हैं, ठीक है, तो उसको, या मुझे नहीं पता था वो खाते हैं, तो साउथ इंडिया में अपेरेंटली इट्स वेरी फेमस एंड इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो, तो वो और भी बहुत सारी डिशेज़ है, कुछ डिशेज़ जेनुइनली अच्छी है, तो जैसे मैं, हम लोग कभी बाहर जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, उधर खाया है तो वो अच्छी थी, बट हॉस्टल उसे इतना बेकार बनाता है, एंड नॉट जस्ट वंस, हर बार, तो पूरा मतलब आपका, यू नो, योर ब्रेन जस्ट गोज लाइक डैम, तो वो हो गया, एंड देन अपना खुद का सब कुछ ऑर्डर करना, एंड देन रूम, राइट नाउ, इफ़ यू लुक एट माई रूम, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इन अ मेसी स्टेट, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा सामान बस अपनी पोजीशन पे नहीं होता, इधर उधर होता है, तो पूरा मेरा रूम ही थोड़ा इन जनरल वैसा लगता है कि इट्स डिसऑर्गनाइज्ड, बट लाइक आफ्टर आई क्लीन इट, सो इट लुक्स फाइन, सो दैट इज़ वन थिंग, so all these things combined makes you realize the importance of your family, and especially जब आप पहली बार आते हो, for the first year when you come in, and then you have your video calls and stuff, and then you look at their face,
एंड देन यू आर लाइक ओ मतलब यू फील रियली बैड एंड यू आर लाइक कि ठीक है. So there's a certain things that I wanted to share, but it's too early for that, तो अभी मैं नहीं बोलूँगी. um, because I don't really wanna मतलब ऐसे I wanna be first comfortable with sharing everything. ठीक है, कुछ नहीं, छोटी सी बात है भाई, कुछ सीरियस तो था नहीं. एंड सेकेंड ईयर में, नाउ सेकेंड ईयर द थिंग इज़ नाउ आई हैव बिकम अकस्टम टू इट. अब मुझे आदत हो गई है. तो ऐसा नहीं है कि घर की याद नहीं आती. बीच बीच में मतलब इतना मोनोटोनस हर रोज़ सेम चीज़ कर करके कि भाई उठो कॉलेज जाओ वो करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज. उसमें मैं इसके लिए नहीं बोल रही, वीडियो के लिए नहीं बोल रही, या किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं बोल रही. आई एम ग्रेटफुल बिकॉज फर्स्ट ईयर वी हैड एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी. आई लव्ड ऑल द सब्जेक्ट्स. बायोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग में थोड़ा सा ड्राई लगा था, बट लेटर व्हेन आई स्टडीड वेल तो हो गया मेरे. तो टच वुड आई डिड वेल अकेडमिकली, बट मैं ये सब मुझसे फ्लेक्स ये सब नहीं होता, तो मुझे नहीं करना है. इसलिए मैंने बोला बिकॉज मैंने किसी को बोला नहीं था. ऑल दैट साइड. सो द मेन थिंग इज़ अल्टीमेटली ठीक है मेरे अकेडमिकली मैं अच्छा करती हूँ या जो भी है, दैट इज़ वन थिंग. बट अल्टीमेटली द एम इज़ आफ्टर इंटर्नशिप, इफ एनीथिंग हैपन्स, टच वुड नहीं होना चाहिए, तो एम आई एबल टू हैंडल और नॉट. कोई ये नहीं पूछेगा अच्छा आप टॉपर थे या फिर अच्छा आप नहीं थे. वट एवर, नो वन विल आस्क यू दैट. They will be like, okay, there's a patient over here, not necessarily an emergency case. For example, they could have just a thumb. हमारे एक anatomy sir ने once he was describing an incident कि his son had a thumb, not exactly dislocation, I'll have to ask him. तो at that time he was not at home, so his family took him to some hospital. अब वहाँ पे एक freshly passed MBBS graduate बैठे थे. And since he did not know what to do, he just observed it. उस glass pieces थे, so after that जो normal cleaning and like normal dressing करके he sent it away. After few months they figured out कि जो ligament या जो muscle sort of got detached. अब when it was regenerating, तो वो अपने जैसे ये मसल है ठीक है, उसका एक ओरिजिन इंसर्शन होता है. तो यहाँ पे जैसे मैं मसल का नाम मैं दैट इज़ व्हाट मैं इसमें आई वांट टू आल्सो शेयर मेडिकल कंटेंट टू एजुकेट पीपल अबाउट बेसिक थिंग्स. बट मुझे ऐसे फ्लेक्स नहीं करा, जैसे मैंने कुछ नाम ले दिया जैसे ब्रेकियोरेडियालिस या कुछ, कितने लोगों को पता है. तो मेरे को ऐसे कुछ फैंसी वो नहीं करना. ईजी लैंग्वेज में जो यहाँ पे मसले कुछ होती है, अब ये मसल है उसका एक यहाँ से ओरिजिन होता है और एक जगह पे वो इंसर्ट होती है. नाउ if during some case it gets detached and while it is growing, अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाके if it goes somewhere else, so obviously that is a problem. सो बहुत टाइम बाद उनके लाइक हिज handwriting changed, so his class teacher told. So then sir got it checked at other hospital from a senior doctor. Then he checked x-ray किया and then they figured out कि क्या problem है, and उसके लिए they had to spend another 1 lakh. So the thing is his point was not कि एक MBBS डॉक्टर को कुछ नहीं आता. इट्स नॉट दैट. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर फ्रेश थोड़ा रिस्क होता है, बट अगर आपको नहीं आता, द मोस्ट बेसिक थिंग यू कैन डू इज रेफर टू अ सीनियर. ठीक है कि नहीं आता, एक बार देखा, यू ट्राइड कि ठीक है. वॉट ही कुड हैव डन, बेसिक अडक्शन अबडक्शन. बेसिकली जब ये आपकी बॉडी है, जब यू आर डूइंग मूवमेंट टूवर्ड्स योर बॉडी, उसको बोलते हैं भाई फर्स्ट ईयर की तो मैं चीज़ें ही भूलती जा रही हूँ. वन इज़ abduction, वन इज़ adduction, अवे इज़ abduction एंड टुवर्ड्स इज़ adduction. होपफुली यही सही है, बट एनीवेज. तो बेसिकली द मेन थिंग भी ये मूवमेंट्स होते हैं. तो ये अगर वो कर लेता जो या कर हाँ ही वॉज अ मेल दैट डॉक्टर, सो इट वुड हैव बीन ओके. यहाँ पे गलती से मुझसे वीडियो बंद हो गया था व्हेन आई वाज चेकिंग माय ईयरफोन. एंड अगर मैं वो दूसरा पार्ट भी ऐड कर दूँ, सो द होल वीडियो विल गो ऑन टू 40 minutes. एंड मे बी यू आर स्क्रोलिंग और वट एवर यू डूइंग. आई डोंट वॉन्ट कि इतना लंबा वीडियो कोई देखे या उनका टाइम वेस्ट हो वट एवर. सो आई जस्ट ऐड द सेकेंड वीडियो सेपरेटली.